Hi students, today we will do lesson number 3, Animals Shelter of Environment. Come on now, the first line, see the picture. Animal shelter means what? Now, जैसे हम लोगों को ह्यूमन बींग्स को शेल्टर की जरूरत पड़ती है, शेल्टर मीन्स हाउस, वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत पड़ती है. ओके, they also need the shelters. So how they make their shelters, from where, which material they made their shelters, what difficulty they face to make the shelters, we will see that. Okay, now see there in picture, cat. Can you see? Cat is just saying the mouse. Mouse is inside the house, that's why he is safe. Now see the cat is seeing the eggs that is on the tree. Nets in nest tree, eggs are there. Now we will see in that lesson what we will learn about animal shelter. Now see there, the cat is lying in wait for someone. Who is that? Can you tell me? देखो, cat किसका इंतजार कर रही है? Mouse का. Okay. What has frightened the crows? Why are they trying to frighten the cat away? Now ये जो crows दिख रहे हैं आपको? Can you see the crows? Why they are shouting all of them? Because cat is admiring the nest. They are frightened that the cat will jump and eat their eggs. That's why they are frightened. Now, can you tell me, what do birds use to build their nest? Which animals live in burrows? Where do the hens we keep live? Who build their shelter? Now we will learn about that. First, why do we need houses? हमको घर की जरूरत क्यों पड़ती है? हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? Now see there, first I will read all first and then I will explain. Very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us great discomfort. We live in houses to protect ourselves from them. A house also protects us from thieves. Now देखो अभी कौन सा सीजन चालू है? Which season is going on? Rainy season. If we not have the house, then what will be there? We will all wet in the rainy season. We will suffering from so many diseases. So everybody, human beings, animals, they need the house for their protection. Now see the very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us great discomfort. Now बारिश का सीजन चल रहा है. बारिश में अगर आप घर के बाहर रहोगे तो भीग जाओगे. भीगने के बाद क्या होता है? हम लोग बीमार हो जाते हैं ना. और जब भी ठंडी आती है, कोल्ड सीजन आता है, तो ठंडी हवा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे हाउस में अच्छे से सोफे पे, पलंग पे हम लोग ब्लैंकेट लेके अच्छे से बैठ जाते हैं ना. सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. और सन, जब भी गर्मी का सीजन आता है, बहुत धूप होती है, बाहर बहुत धूप हार्ड होती है, तो कैसे कहाँ रहते हैं हम लोग? घर में एसी कूलर चला के हम लोग बैठते हैं. सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्म ऑफ द सन, है ना, सनरेज. सो हाउस सबके लिए जरूरी है. Now some people live very close to forest. Now what they are saying? They have to face the threat of wild animals. A house protect them from the wild animals too. अभी घर हमारी हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है? सन, हीट एंड कोल्ड. ओके, रेन, सन एंड कोल्ड, इनसे तो बचाव करता है हमारा. और किससे बचाव करता है? थीव्स से. व्हाट इन बाय थीव्स? थीव्स मतलब क्या? थीव्स मतलब चोर. चोरों से भी हमारा हाउस हमारा बचाव करता है. ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम द थीव्स. सम पीपल, अभी देखो बहुत सारे लोग ना जंगल के पास रहते हैं, तो उनको और एक डर होता है. किसका होता है? किससे बचाव करना होता है उनको? ठंडी, बारिश और हवा, इससे तो करना होता है. और किससे करना होता है? वाइल्ड एनिमल्स. हाँ, थ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उससे बचाव के लिए भी उनको घर की आवश्यकता पड़ती है. तो ये सब घर हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट, cold, rain and thieves. And those who are living near the forest, they are also safe from the wild animals. Okay. Now, see in the bracket a new term, shelter. What in by shelter? A safe place
where one is protected from any danger, a place where one is protected from the sun, rain, wind, etc. Means what do you mean by shelter? शेल्टर का मीनिंग क्या है? शेल्टर किससे बचाता है? अ सेफ प्लेस, जो हमको किससे बचाता है? डेंजर से बचाता है. कौन सी डेंजर से? थीव्स का डेंजर, सन, कोल्ड, रेन, इससे तो बचाता है. और किससे बचाता है? जो लोग फॉरेस्ट के बाजू में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है. ओके, शेल्टर मतलब हाउस. लाइक अस, डू एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर? सम एनिमल्स डू. They build shelter for themselves. Some other animals find shelter in safe places in the environment. अभी जैसे हमको घर की जरूरत पड़ती है वैसे एनिमल्स को भी जरूरत पड़ती है. तो कोई एनिमल्स क्या करते हैं, वो रेडीमेड बना हुआ शेल्टर मतलब बना हुआ घर या कुछ जगह ऐसे ढूंढ लेते हैं अपना बचाव करने के लिए. और कोई एनिमल्स बर्ड क्या करते हैं, अपना हाउस खुद बनाते हैं. ओके, नाउ सी देयर एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ. अभी हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जो एनिमल अपने लिए खुद शेल्टर बनाते हैं. ओके, नाउ सी देयर यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट. आपने सबने देखा है घोंसला? सी बर्ड का घोंसला है ना, नेस्ट. इसको क्या बोलते हैं? नेस्ट. नेस्ट आर शेल्टर दैट बिल्ड बर्ड्स बिल्ड. ये जो नेस्ट है कौन बनाता है? बर्ड्स बनाते हैं. बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स, सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स. अभी जो बर्ड्स होते हैं उनको किससे डर लगता है? एनिमल्स जो उनके अंडे खा जाएंगे, है ना. उनके उनसे बचाव करने के लिए वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं और वहां अपने अंडे देते हैं. Baby birds come out of the eggs. There are animals that eat these young birds. The young birds are too weak to defend themselves. The nest keep the young ones safe. That is why birds will nest. They use things like grass, straw and twigs to build nest. They may even use cotton, wool and pieces of thread and string. This makes the nest soft and warm inside. But the nest of all the birds are not all alike. now देखो बर्ड्स क्यों नेस्ट बनाते हैं? अपने एग्स ले करने के लिए और उनका बचाव करने के लिए, है ना, क्योंकि एनिमल्स वो खा लेते हैं. बिकॉज they eat the eggs, animals eat the eggs. That's why to protect from that animals, birds build a nest where they can lay their eggs and out, and after some days see small babies will come out, है ना. और जो स्मॉल बेबीज होते हैं बहुत वीक होते हैं, वो अपना बचाव कर सकते हैं क्या? नो. तो उनका बचाव करने के लिए ऊपर झाड़ पे बहुत टॉप ऑफ द ट्री अपना नेस्ट बनाते हैं. मीन्स नोबडी विल कैन रीच देयर. ओके, अभी नेस्ट बनाने के लिए व्हाट क्या सामान यूज करते हैं? वो सीधे कौन से सामान थिंग्स यूज करते हैं? ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट. ग्रास, सूखी हुई घास, छोटी छोटी ऐसी लकड़ियां पतली वाली, है ना, ट्विग्स दे यूज टू मेक द nest. Then they may even use cotton का piece, wool and piece of thread and string. मतलब उससे क्या रहेगा? ये जो है nest एकदम soft रहेगा अंदर से, ना. उनको ये लकड़ियां जो है वो लगेगी नहीं. और कैसे रहेगा? This make the nest warm. मतलब अंदर से गर्म रहेगा वो, ये small babies के लिए. This make the nest soft and warm inside. जिससे soft भी होगा और गर्म भी होगा, है ना. लेकिन जो सब बर्ड्स है सबके नेस्ट सेम होते हैं क्या? नो. अभी हम सब अलग अलग जो बर्ड्स बनाते हैं अपने नेस्ट, वी विल लर्न अबाउट देम. ओके, बर्ड्स चूज convenient place to build nest. Look at the weaver bird. It chooses a thorny tree which has some branches hanging over water. It builds its nest on the highest of these branches. Animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. अभी दिख रहा है आपको ये राउंड सर्कल में दिख रहा है? विच बर्ड इज दिस? क्या नाम है बर्ड का? वीवर बर्ड. देखो ये उसका नेस्ट है. सबके नेस्ट अलग अलग होते हैं. अब ये कहाँ बनाती है अपना नेस्ट? अपने नेस्ट बनाने के लिए पहले ट्री का चॉइस करना पड़ता है. तो ये कौन सा ट्री चॉइस करती है? थॉर्नी ट्री. थॉर्नी मतलब कांटों वाला झाड़, है ना. और उसकी एक टहनी पे ब्रांचेस पे अपना ये घोंसला बनाती है. क्यों बनाती है थॉर्नी ट्री पे? क्योंकि कोई एनिमल्स वहां कांटे की वजह से, थॉर्न की वजह से नहीं जा पाएगा और उससे उनके छोटे बेबीज का बच्चा हो जाएगा, है ना. अंदर समझ में आया आपको? थॉर्नी ट्री मतलब कांटों वाला झाड़. ओके, और सबसे ऊंची वो अपना नेस्ट बनाती है जिसे कोई
एनिमल वहां तक नहीं पहुंच सके और उनके जो एग्स है वो सेफ हो जाए। नाउ नेक्स्ट द टेलर बर्ड। अब ये कौन सा बर्ड है, देखो यहाँ ये राउंड सर्कल में टेलर बर्ड। क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड, टेलर बर्ड। नाउ नाम से ही मालूम पड़ता है टेलर मतलब आप आपके कपड़े कहाँ सिलने को देते हैं, टेलर के पास देते हैं ना। तो सेलर टेलर उसको अच्छे से फाइन सिलाई करके एकदम अच्छे से फिनिशिंग करके आपको आपके ड्रेसेस देते हैं। यस, तो ये टेलर बर्ड भी ना अपने घोंसला बहुत, अपना नेस्ट है ना बहुत अच्छे से बनाता है, जैसे कोई टेलर अपने कपड़े को सीता है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ इट इज मेक। द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो। स्पैरो से एकदम स्मॉल होता है, चिड़िया से भी छोटा होता है। It selects a plant which bigger leaves and builds its net by stitching the leaves together. It uses a fine thread to stitch them together. This little nest is big enough for the little tailor bird. दिख रहा है आपको ये पिक्चर में, ये है उनका नेस्ट। अभी नेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, टू लीव्स, दो बड़े बड़े लीव्स को एक साथ जोड़ के उसको पूरा सीते, देखो ये लीव्स नेस्ट के जैसे, और उसमें फिर अपना नेस्ट बनाते हैं, है ना। स्मॉल होता है लेकिन उसके लिए देखो ये कितना बड़ा है उसका घर। अभी कैसे सीती है स्मॉल, आपने ये जो चोंच दिख रहा है आपको उसकी बीक, उससे हेल्प से ये अपना जो लीव्स है ये पत्ते उसको स्टिच करती है। ओके, नाउ some insects also build their own shelters. For example, honeybees build their honeycombs on the trees or under the roof of an overhanging cliff. हनीबीज देखा है आपने सबने, मधुमक्खी, वो भी अपना घर खुद बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हनी बीज के घर को क्या बोलते हैं, हनी कॉम्स। ओके, और ये कहाँ बनाते दिख रहा है आपको, झाड़ के नीचे, अंडर द ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री, और ओवर हैंगिंग क्लिफ मतलब कोई ऐसी जगह रूफ की छत के यहाँ, वहां वो अपना घर बनाती है। ओके, now rats and mice live underground in fields. They dig into the soil and make holes and burrows to live in. दिख रहा है आपको ये, देखो ये कैसे, कहाँ रहते रैट एंड माइस, अंडरग्राउंड इन फील्ड्स मतलब जमीन के नीचे रहते हैं, जहाँ वो आसानी से सॉइल में अपना होल्स बना के, होल्स और बोरोस बना के वो अपने रहते हैं। ओके, rats and mice also live in areas where people live. They make holes in the walls or under the roof in houses. They mostly take shelter in mud houses and not in those built with cement. That is why, because they cannot dig holes into cement construction. अभी माउस देखो, रैट्स भी कितने होशियार है, वो क्या करते हैं, अपना घर कहाँ बनाते हैं, वो मड हाउस में, मतलब मट्टी का जो घर होता है वहां बनाते हैं वो। ओके, उससे क्या बनेगा, उससे क्या होता है, उससे उनको हाउस बनाने में इजी होता है ना, मड में अपने दांत से वो बना सकते हैं। लेकिन सीमेंट कंस्ट्रक्शन में कैसे बनाएंगे, उनके दांत टूट जाएंगे, इसलिए वो क्या कौन सा चॉइस करते हैं, मट्टी वाले घर चॉइस करते हैं, जिससे वो अपना घर बना सके। और जो सीमेंट के घर होते हैं सिटीज में, वहां वो रहते हैं, लेकिन वो मोस्टली मड वाले जो हाउस होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग। अभी हमने ऊपर क्या देखा, जो अपना घर खुद बनाते हैं। ओके, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, है ना, हम लोगों ने देखा हनी कॉम्स, ये अपना घर खुद बनाते हैं, रैट माइस। अभी जो एनिमल्स हम लोग नीचे देखेंगे, ये क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे फाइंड रेडी, मीन्स रेडीमेड चाहिए उनको, रेडीमेड हाउस देखते हैं वो बनाने की मेहनत नहीं करते हैं। नाउ सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर। कोई मेहनत नहीं करते घर बनाने के लिए, they simply look around for a safe place. Some doves and pigeons live in forest. Some live in a small holes in the high cliffs. Some live near our houses. They find shelters in gaps in walls. Now देखो ये doves and pigeons दिख रहे, doves and pigeons मतलब pigeon देखा है सबने, कबूतर। doves means also same, सेम ही है लेकिन थोड़ा उससे बड़ा होता है। ओके, ये कहाँ रहते हैं, कोई कोई फॉरेस्ट में रहते हैं और बहुत सारे हमारे साथ रहते हैं, लेकिन देखा है ना आपने, वो कोई घोंसला बनाते हैं क्या, नो। रेडीमेड अगर विंडो, कोई पड़ा हुआ घर है, जूना घर है, जहाँ कोई जाता आता नहीं है, वो मोस्टली उनका घर बना लेते हैं वो। देन ऊपर विंडो के यहाँ बालकनी में जहाँ प्लेस मिल जाएगी उनको, वहां वो अपना हाउस बना लेते हैं, रहने के लिए जगह बना लेते हैं। ओके,
Now tigers, leopards, hyenas live in caves. Tigers, leopards और hyenas कहाँ रहते हैं? Caves में रहते हैं. क्यों रहते हैं वो? Because they are wild animals. Okay. Now see, we will learn about that. Some types of bats live in a tall trees, but some live in dark caverns in mountains, or they look for shelter in old disaster tumble down building. देखो टाइगर कैसे बैठा है ना, उनकी केव्स में रहते हैं वो. अब ये नीचे देखो क्या, व्हाट यू कैन सी, बैट्स. बैट्स कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं. और देखो ये कैसे उल्टे लटके हुए हैं. ये ऐसा बर्ड है जो जिसको विंग्स है लेकिन वो ज्यादा उड़ नहीं सकता है ना, उल्टा रहते हैं वो, उल्टे लटके हुए रहते हैं. नाउ ये कहाँ रहते हैं? डार्क कार्वेंस में रहते हैं, जैसे गुफा में या बंद घर में, वहां वो अपना घर बना लेते हैं. ओके. नाउ देखो, डू यू नो में देखो, इट इज बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन अ ant hill, but that is not true. Ant hills are not built by ants, not by a cobra. The cobras live in holes. देखा आपने बारिश के सीजन में, देखा आपने, देखा होगा ये जब भी आप गांव में या कहीं जाते होंगे ओपन प्लेस में. तो ये क्या है? एंट हिल है. एंट हिल मतलब चींटियों का घर. लेकिन क्या बोलते हैं कि ये एंट हिल घर बनाते हैं लेकिन उसमें कोबरा रहते हैं. कोबरा रहते हैं क्या? दैट इज नॉट ट्रू. एंट हिल्स आर बिल्ड बाय एंट्स, नॉट बाय अ कोबरा. एंट हिल्स जो होते हैं वो एंट्स बनाते हैं, कोबरा नहीं बनाते. द कोबरा लिव्स इन होल. और कोबरा इसमें नहीं रहते, वो होल्स में रहते हैं. नाउ शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल मीन्स एनिमल्स दैट वी कीप विद अस, मतलब हम हमारे साथ जो उनको रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल. उनसे हमको फायदा होता है ना. दे आर यूजफुल टू अस. व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम. जो एनिमल्स हम लोग रखते हैं उनके लिए हम शेल्टर बनाते हैं. द शेल्टर बिल्ड फॉर हैंड्स इज कॉल्ड अ चिकन कूप और चिकन हाउस. दिख रहा है आपको ये चिकन? चिकन के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू वी कैन मेक? चिकन के लिए क्या बनाते हैं? चिकन हाउस है ना, चिकन कूप और चिकन हाउस. द शेल्टर बिट फॉर हैंड्स इज कॉल्ड अ चिकन कूप और चिकन हाउस. ओके. नाउ अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउस. काउस के लिए क्या बनाते हैं? व्हाट वी मेक? देखा है ना आपने, गांव में देखा होगा जो लोग गाय रखते हैं वो क्या बनाते हैं? काउ शेड बनाते हैं काउ के लिए. नाउ द शेल्टर फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल. क्या बनाते हैं? जो हॉर्स के लिए बनाते हैं वो क्या करते हैं? जो घर बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल. और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तबेला. नाउ लेसन में हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्न. एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, विंड, सन एंड रेन. जैसे हम लोग अपने आप को बचाव करते हैं वैसे एनिमल्स आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, विंड, सन एंड रेन. सम एनिमल बिल्ड्स देयर ओन शेल्टर. हमने देखा कोई एनिमल्स अपने अपना नेस्ट खुद बनाते हैं. सम एनिमल्स लुक फॉर अ रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग. और कोई एनिमल्स क्या करते हैं? व्हाट सम एनिमल्स डू? दे आर फाइंडिंग रेडीमेड हाउसेस, रेडीमेड प्लेसेस टू लिव. वी बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप. और जो एनिमल्स को हम लोग अपने पास रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, वी बिल्ड शेल्टर फॉर देम. हम उनको शेल्टर बना के देते हैं. ओके. ऑलवेज रिमेम्बर, इज इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर आवर प्लेजर? नो, लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. नाउ आपको पसंद, देखो व्हाट दे आर सेइंग. अगर आप कोई एनिमल को, बर्ड को केज में मतलब पिंजरे में रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या हमारी खुशी के लिए? नो, उनको नेचुरल उनकी सराउंडिंग में बड़ा होना देना चाहिए. अगर आपको कोई एक रूम में बंद करता है और आपको सब खाने पीने के लिए सब चीजें देता है लेकिन बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नो. तो कोई भी एनिमल, बर्ड्स को पिंजरे में, केज में हमारी खुशी के लिए नहीं रखना है. ओके. I hope you understood the lesson. Be ready for the next lesson. Okay. Bye.
एक्सरसाइज क्यों चालेल का मध्ये मध्ये बोलून now see the exercise, fill in the blanks. The nest of birds are not dash. सब birds के nest एक जैसे होते हैं क्या? No, not alike means not same. Second, the dash bird is smaller than a sparrow. Tailor bird है ना? We learn ना? Third number, some animals do not make any dash to build shelter for themselves. कोई animals क्या करते हैं? What they are thinking? They are finding ready-made. Means they are not taking any efforts. Answer is efforts. Tigers, fourth number, tigers, leopards and dash live in caves in mountains. Tiger, leopards and hyenas live in caves in mountains. कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. Fifth one, the shelter made for a horse is called a stable. Horse के घर को क्या बोलते हैं? Stable. Answer the following question. What does the tailor bird use to stitch its nest? क्या यूज करती है? टेंड्रिल मतलब फाइन अपनी बीक और एकदम पतली सी स्टिक जो झाड़ में होती है, पतली पतली क्लाइंबर्स की रोप होती है, उसको वो स्टिच करती है. इट यूज टू मेक इट्स नेस्ट. सेकेंड, what makes it difficult for animals that eat eggs to reach a weaver bird nest? Because a weaver bird choose thorny tree. कांटों वाला झाड़ चूज करती है ना. That's why no animal can reach to weaver's bird nest. Okay, and that's why weaver birds eggs are safe. Third number, how do birds make their nest soft and warm? Bird अपनी nest को soft और warm कैसे बनाते हैं? They use piece of cotton, then piece of cloth, thread that make the nest soft and warm. Okay. For next, why do mice and rats not enter houses built with cement? कैसे क्या जाएंगे? सीमेंट के हाउस में जाएंगे क्या माउस और रैट? नो. अगर वो होल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनके दांत ही सब जो टीथ है दे विल बी ब्रेक. So it's difficult to make holes in the cement construction. That's why rats and mice not enter houses built with cement. Next, where do bats find shelter beside dark caverns? कहाँ रहते हैं वो? In caves, in tomb buildings means जो buildings houses use नहीं होते हैं उसमें वो bats रहते हैं. Okay, we completed our third lesson. Okay, bye. We will meet in lesson number 4.